براہ راست مناظر ہیں مزار قائد سے آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ملت ہیں، دانائے راز، مرد خود بین و خود آگاہ ہیں۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان رینجرز پنجاب کے دستے کی قیادت کرنے والے آفیسر مہمان خصوصی سے گارڈ کے معائنے کی پرمیشن لیں گے، جس کے بعد مہمان خصوصی آج کے اس اعزازی گارڈ میں شامل دونوں دستوں کا معائنہ کریں گے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو اور اپنے مشاہیر کو یاد رکھتی ہیں، ان کے افکار سے رہنمائی حاصل کرتی رہتی ہیں۔ بلا شبہ اقبال بھی محسن ملت ہیں، انہوں نے ہی اس وطن کے الگ آزاد ہونے کا تصور پیش کیا۔ یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ کسی شاعر کی فکر اور تخیل نے نہ صرف تاریخ کا دھارا بدلا بلکہ دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ شاعر عموماً عام طور پر خیالی دنیا آباد کرتے ہیں، محبوب کے لب و رخسار کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اقبال کی فکر نے تو کرۂ ارض پر ایک ایسی مملکت کو جنم دیا جس میں آج ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اسی زندہ و جاوید کا یوم عظیم ہے جس نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی فکری تنظیم کی اور ملت کی روح افسردہ کو خودی کی تعلیم سے ایک نیا عزم حیات بخشا۔ آپ یہ مناظر براہ راست مزار اقبال سے دیکھ رہے ہیں۔ مہمان خصوصی کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے، اور یہ اب وہ ایک خاص سلامی ہے جو کہ مزار اقبال پر پیش کی جا رہی ہے، اور یہ نیوی کا دھنے بکھیرتا ہوا شاندار بینڈ ہے۔ پاک بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے دونوں دستوں کا معائنہ کیا، جس کے بعد وہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر پہنچیں گے۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں معائنے کی تکمیل کی رپورٹ بنائی جا رہی ہے آج کے مہمان خصوصی کو۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ ایسے شاندار اشعار ہیں جو اقبال کی فکر اور پھر اس کے جو اثرات قوم پر مرتب ہوتے ہیں، سمت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے ایک ضابطۂ حیات ہیں۔ یہ نظم و نسق، یہ تربیت اور یہ جوش و خروش، یہ ہمیں اقبال کے کلام سے ملتا ہے۔ جی بلا شبہ اقبال لطیف جذبات و احساسات کے ترجمان ہیں۔ ان کا کلام دل و دماغ کو روشنی اور روح کو فرحت عطا کرتا ہے۔ ان کا پیغام آج بھی محرومی اور مایوسی کی عطا گہرائیوں سے نجات دلاتا ہے۔ ان کی لغت میں مایوسی اور ناممکن کا لفظ ہی نہیں، وہ انسان کو ایسی قوت عطا کرتے ہیں جو انسان کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنا دینے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پاک بحریہ کے دستے کی قیادت کرنے والے آفیسر لیفٹیننٹ فرمان اللہ مہمان خصوصی سے اعزازی گارڈ کی تعیناتی کی اجازت لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آج کی اعزازی گارڈ پاک بحریہ کے جوان سنبھالیں گے۔ یہ پرشکو مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں مزار اقبال لاہور سے، جہاں پر حضرت اقبال کا 148واں یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ ایک مبارک دن ہے، ایک موت پر دن ہے، اور زندہ قومیں اپنے مشاہیر کو یاد رکھتی ہیں۔ آج زبردست خراج عقیدت ہے حضرت علامہ اقبال کو، لاہور پاکستان کا دل ہے، جائے مدفن ہے حضرت علامہ اقبال کی۔ سیالکوٹ میں پیدائش ہوئی لیکن عمر کا زیادہ تر حصہ لاہور میں گزرا۔
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारग तहसील हुए और फिर इस इदारे का नाम भी खूब चमका, जैसे इकबाल का नाम चमका। ये शहर लाहौर है जहाँ पर इकबाल ने वकालत की, और इनके मशाहिर जो थे, अगर उनका भी जिक्र किया जाए तो कैसे कैसे लोग थे। गुलाम रसूल मेहर हों, अब्दुल मजीद सालिक हों, फिर आगे चले जाएं तो नवाब मौसूल मुल्क से उनकी नियाज़मंदी रही, ज़फ़र अली खान से उनकी काफ़ी दोस्ती थी। इकबाल हर लिहाज से बाकमाल शख्सियत। पाक बहरिया के सेलर्स अपने दस्ते से बाहर निकले और वो इस वक्त मज़ार के बैरूनी इहाते की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो अपनी पोजीशन लेंगे। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसे आहिस्ता चल अंदाज कहते हैं मार्च का। कदम बकदम शमशीर बकफ जवान अपनी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही पाक बहरिया के जवान आज की एजाज़ी गार्ड संभालेंगे तो पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल का कलाम आब हयात का ख़जाना है, जिससे ज़िंदगी और ज़िंदा दिली के सरचश्मे उबलते हैं, जिनसे सैराब होकर मायूस दिलों की खुश्क और बंजर ज़मीन में जान पड़ जाती है। और इकबाल ऐसा सुखनवर, ऐसा खुशनमा शायर है जिसका रमज़े शायरी रमज़े एकाम खुदा है, उसका तराना हर्फ हक है, उसका नगमा इल्लल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इकबाल की फ़िक्र सोच से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इस्तेहकाम हासिल हुआ। जब खाक साहब पर लाहौर में गोली चली तो फ़ज़ा बड़ी सोगवार थी। फिर इफ्तिखारुद्दीन ममदूद के घर खाकसारों की, जहाँ पर कायद-ए-आज़म ने इयादत की, वो यहाँ इकबाल पर भी पहुँचे। ये फरमाया कि अगर आज इकबाल ज़िंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि हम इनके ख्वाबों की ताबीर पूरी कर रहे हैं। कौमी तराने की खूबसूरत धुन पर शायर मशरक को कौमी सलाम पेश किया गया। खुदा करे ये पाक सरजमीन, ये किश्वरे हसीन, ये मरकज़ यकीन, निशान अज़्मे आली शान हमेशा शादो आबाद रहे। ये परचम सितारा व हिलाल हमेशा वतन की फ़िज़ाओं में लहराता रहे, और इस वतन पर ताअबद साया खुदाए जुल जलाल रहे। फिर जब हज़रत इकबाल को नाइटहुड बेस्टोड किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरे जो उस्ताद हैं मौलवी मीर हसन, उनको एजाज़ से नवाजा जाए। फिर जब शम्सुल उलमा का उनको खिताब मिला, तब पहले तो इकबाल इस पर राज़ी नहीं थे कि उनको वसल का खिताब हासिल करें, लेकिन फिर उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, उन्होंने कहा कि एजाज़ ज़ाहिर उसको भी फ़ख्र था कि वो इकबाल को पेश किया जा रहा है, और इससे फिर वो सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल हुए। 1930 का अगर हम जिक्र करें खुतबा इलाहाबाद, उसमें वो तसव्वुर था। फिर यहाँ पर ये भी हमें याद करना है कि जब कायद आज़म मायूस होकर इंग्लिस्तान चले गए तो ये इकबाल ही थे जिन्होंने कहा कि आप वापस तशरीफ़ लाइए। और फिर दो नौजवान थे, हमीद निज़ामी और कर्नल अमजद हुसैन, उनसे कहा कि मुंडियो तुसी मेरे को लाए हो, असल जरा काम करना है पलवान ने कर रहे हैं, और वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये इकबाल का फरमाना था, ये उनका कहना था जो हू बहू सच साबित हुआ। जी, मुझे इकबाल की वो रुबाई याद आ रही है जो उन्होंने अपने लोहे मज़ार के लिए लिख रखी थी, लेकिन उनके दरीना दोस्त सर्रास मसूद का जब इंतकाल हुआ तो वो रुबाई इकबाल ने उनके लोहे मज़ार के लिए पेश कर दी। वो रुबाई क्या है? इकबाल फरमाते हैं, नए पैवस्तम दरी बुस्तान सरादिल जे बंद ईन आन आज़ाद रफ्तम चूबाद सुबगर्दीदम दमीचन
गुलरान आब रंगी दादे रख्तम कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, पर मैंने इस दुनिया की किसी भी चीज़ से दिल नहीं लगाया। मैं इस दुनिया की रंगीनियों से आज़ाद चला गया हूँ। मैं तो सुबह के हवा के झोंके की मानद आया हूँ और इस चमन को ताजगी शादाबी देकर चला गया हूँ। इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश होने के बाद वापस अपने दस्ते में शामिल हो गए हैं। ये जवान और एजाज़ी गार्ड की ज़िम्मेदारियां पाक बहरिया के सेलर्स के हवाले हो चुकी हैं। आपने जिक्र किया रॉस मसूद साहब का, नवाब जुल्फ़िकार अली खान से भी अल्लामा इकबाल साहब की दोस्ती थी और नवाब जुल्फ़िकार अली खान साहब को भी नियाज़मंदी हासिल रही अल्लामा इकबाल की। हज़रत इकबाल के शायर से जहाँ पूरी कौम और पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन जो है वो फ़िक्री बालिदगी कशीद करते हैं, वहीं उनके कुछ अशार जो है वो मुसल्ला अफवाज के भी दिलों के बहुत करीब हैं जी। जैसे कि आपका फरमाना है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहां हमारा, ए अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। ये खून को गरमाने वाले अशार, ये तुर्र इम्तियाज़ हैं, जैसे कि अभी लेफ्टिनेंट कमांडर साहब यासर साहब फरमा रहे थे कि ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी मशलेरा हैं, भी क्या बल्कि मशलेरा हैं। ये अशार हम मुख्तलिफ फौजी मकामात पर देखते रहते हैं। हालांकि इस वक्त जो तकरीब है उसमें भी अस्करी रंग जो है नुमायाँ है। ये रेंजर का जवान है, इसकी तमकनत देखिए, इसकी चाल ढाल देखिए, खड़ा होना देखिए, कदोकामत देखिए और चौड़ी छाती देखिए। ये हैबत तारी कर देते हैं दुश्मनों पर, जिस तरीके से चलते हैं, जो इनके कदमों की चाप है वो यहाँ पर इस वक्त एक ख़ास घनघरज पैदा कर रही है। मज़ार इकबाल इस मंज़र में है, मेहमान खुसूसी को भी आप देख सकते हैं। ये लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का सकाफती मरकज़ है, लाहौर पाकिस्तान का कल्चर हब है और लाहौर को ये शरफ हासिल है कि हज़रत अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह भी यही वाक़ है, जहाँ की ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। आज 148वां यौम वलादत है हज़रत अल्लामा इकबाल का। इकबाल फरमाते हैं, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख़िशानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नौरानी। जो रहनुमाई हासिल की हज़रत अल्लामा इकबाल ने, दाग देलवी हो या मीर हसन हो, वो भी ज़रबुल मिसल है। तो हमारे पंजाब में एक टर्म कॉइन की हुई है, बेउस्तादी। हज़रत अल्लामा इकबाल तो ख़ुद उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने अपने उस्तादों का, हार्लैंड का जिक्र हो या मैं दाग देलवी का जिक्र कर रहा हूँ या मीर हसन का जिक्र कर रहा हूँ, तो उन्होंने रोशनी हर जगह से हासिल की, अफराद से भी, इदारों से भी। इकबाल फरमाते हैं, अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, दिलों को मरकज़े महरो वफा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर। पाक बहरिया के जवान जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं और जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि पाक पंजाब रेंजर्स के जो जवान हैं वो एजाज़ी तौर पर यहाँ से अब सुबकदोश होंगे। आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी साहब हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मनाज़र देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता अपनी पोजीशन से हट चुका है, जबकि पाक बहरिया का दस्ता मज़ार के अंदरून अयाते में मुंतकिल अपनी पोजीशन ले चुका है। अब इसके बाद मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से हज़रत इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर पेश करेंगे और जिसके बाद फातिहा ख़ानी की जाएगी। इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी फूलों की चादर लेकर अब से चंद ही लम्हों में मज़ार इकबाल की तरफ बढ़ने वाले हैं।
इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को बारहा मुखातिब करके अपनी तमाम उम्मीदों और आरजुओं का मरकज़ बनाया। फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और इकबाल फरमाते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। क्या दुआ है, क्या तवक्को है, क्या म्यार है। हूबहू जो बातें इकबाल आज से 100 बरस पहले कर रहे थे, वो भी हमारे लिए राह निजात हैं, राह सब्र हैं। ये दिन जो है, इसको मनाने का मकसद बड़े पैमाने पर यही है कि नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि जिस कौम में जब हीरो को हीरो की फॉलोइंग नहीं की जाती, उनकी पैरवी नहीं की जाती, तो वहाँ पे हीरो कम पैदा होता है। तो इकबाल सरापा एक इंसेंटिव है हमारे लिए, एक तरगीब है। जी बिल्कुल, जहाँ इकबाल नौजवानों को अपनी उम्मीदों और आरजुओं का मरकज़ बनाते हैं, वहाँ उनकी इस्लाह भी करते हैं। फरमाते हैं, तेरे सोफ़े हैं फ़रंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, इस कलाम पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह अक़दस को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, हमारे इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन। आज की ये पुरवकार तकरीब अपने अख्ताम की तरफ गामज़न है। फातिहा ख़ानी के बाद आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे और हज़रत इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। इस वक्त जो मनाज़िर आप देख रहे हैं, इसे द लास्ट पोस्ट कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, जो कि हज़रत इकबाल को इस वक्त पेश की जा रही है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस शेर को हमें अपना तुर्ल इम्तियाज़ बनाना होगा। खुद निसारी, हमीयत, गैरत पर, कौमी गैरत पर इकबाल ने बड़ा ज़ोर दिया। जी बिलाशुबा, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। कामयाब और ज़िंदा कौमें हर लम्हा अपने आमाल व आफ़ाल का जायज़ा लेती हैं और अपने अंदर पैदा होने वाली कमी और खामियों को दूर करने में लगी रहती हैं, और यही मुहासबा उन्हें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाता है। फितरत अफराद से आगाज़ भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये तो ज़ुबान ज़द आम शेर है, इसकी मानवियत से भी आप वाकिफ़ हो जाएंगे।
अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं सहरे हलाल को कभी कह ना सका कंद। तो वो जो डिप्लोमेसी है और जो एक सूरत हाल है उसके तकाज़े हैं, उसके हवाले से ये शेर भी बारहा हमारी ज़िंदगी में गालिब आता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इकबाल फरमाते हैं, तेरी निगाह में है मौजज़ात की दुनिया, मेरी निगाह में है हादसात की दुनिया। अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। मेहमान ख़ुसूसी आगे की तरफ बढ़ते हुए अब अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठेंगे और हज़रत अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से अपने तासुरात इस किताबचे में दर्ज करेंगे। और कतार अंदर कतार ज़ाहिर है कि वो तसव्वुरात हैं, वो जो मेहमान ख़ुसूसी ने महसूस किए होंगे, ज़िंदगी भर देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनको अब कूज़े में बंद करेंगे और वो शानदार खराजी अक़ीदत हज़रत अल्लामा इकबाल को अब उन सत्रों में लिखेंगे जो कि मेहमान ख़ुसूसी की आज की इस तकरीब का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो बाय ऑल मीन आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासिर रहे। बड़ी रहनुमाई की आपने, और आप इकबाल की फ़िक्र और उनकी सोच के हवाले से भी काफ़ी मालूमात रखते हैं। बताइए कि खुद, क्योंकि आपका ताल्लुक़ हमारी मसल्ह फ़ौज के इदारे नेवी से है, ख़ुद से आपने इकबाल को एज ए रोल मॉडल कैसा पाया? देखें, हज़रत इकबाल को बजा तौर पर हम मुसव्वर पाकिस्तान और मुफक्कर पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने न सिर्फ इस मुल्क के क़याम का तसव्वुर पेश किया, बल्कि इस मुल्क को आगे कैसे चलना है उसकी फ़िक्र भी हमें दी है। जैसे हज़रत इकबाल अपने शेर से कहते हैं, जो हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए, हर तबका फ़िक्र के लिए मशअल राह होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। जैसे वो कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कि दुनिया को लीड करने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो हज़रत इकबाल ने इस शेर में बता दिए हैं कि आपने सदाकत से काम लेना है, अदालत, इंसाफ से, अपनी ज़िम्मेदारियों के इंसाफ से काम लेना है, और जुर्रत, बहादुरी और खुदी से काम लेना। अब हम आपसे यहाँ मज़ार इकबाल से इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते हज़रत अल्लामा इकबाल का वो शेर जो कि उन्होंने दाग देहलवी के इंतकाल पर तहरीर किया था, वो आपकी नज़र है और लगता है कि वो इकबाल ही के लिए भी है। इस जहाँ में होंगे पैदा बुलबुलो शेराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिब इजाज भी, हू बहू खींचे गले के निश्क की तस्वीर कौन, उठ गया नावक फगन मारेगा दिल पे तीर कौन। लेकिन इकबाल ज़िंदा है। यही इकबाल को हम खराज अक़ीदत पेश करते हुए, इकबाल को ज़िंदाबाद कहते हुए यहाँ मज़ार इकबाल से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।